all trustees, dignitaries, all officers and members of MPF. Good evening to everybody. Friends, public relations and public image. It's a very vast topic. It's very difficult to cover actually in short time. It takes at least 1 hour, but I'm given 20 minutes. I'll try to sum up in time. I've gone through your all programs of the year, month-wise programs. Really, I appreciate this really from the bottom of my heart, because your programs are so nicely planned, especially your program that is Diwali Milan, picnic, and Battle of Professionals, the sports event, and of course in Ashirwad program also there is family involvement. All family come together. That's great. Why I appreciate these particular programs? Because really, if you want to build up public relations, you should have good relations at home first. It's a thumb rule. Unless you are comfortable and happy at home, you cannot go for social work. When Mother Teresa got Nobel Prize for Peace, one of the journalists asked her, "Mother, how to bring peace in this world?" She said, "Go home and love your family. There will be peace in the world." Ex-world CEO of Coca-Cola, Brian Dyson, after working for 30 years in corporate world, he has written his experience. He has developed one video clip of only 30 seconds. You can see on YouTube. Just to type Brian Dyson, you'll get that 30 seconds video clipping, in which he said, in our life we play with 5 balls, just like the Joker plays in circus. We play with 5 balls. The first ball is of work, second is family, third friends, fourth health, and fifth spirit. Out of these 5 balls, the first ball is of rubber and rest 4 balls are of glass. If the first ball falls down, it will jump back again, we can catch it. But rest of the 4 balls of glass, that is of your family, friends, health and spirit, if it is fallen, either it will break or it will crack or it will de-shape, but it cannot be the same again. That's why he says, get to work in time. Work effectively during your working hours and get back to your family in time. Warren Buffett, one of the richest men of the world, he also reaches home by 6 p.m. and shuts off his mobile. Kumar Mangalam Birla, in his interview with the Times of India, he said he shuts off his mobile at 8 p.m. and joins family for dinner. That's why, friends, family first. जब तक अपने अच्छे रिलेशंस परिवार में नहीं रहेंगे, हम सोशल वर्क कर ही नहीं सकेंगे। दूसरी बात जो है कि अपने मेंबर्स जो हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम किस प्रकार के मेंबर लेते हैं? वी शुड हैव क्वालिटी मेंबर्स, जो मेंबर्स हु आर ऑनेस्ट, बिकॉज द image of organization depends on honesty, integrity, character and personal image of all members. उसी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत् तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तज्ञो वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य समुदाय भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं।
वह जो प्रमाण बना देता है उसी को प्रमाण मानकर बाकी मनुष्य समुदाय कार्य करने लगते हैं। एमपीएफ के सभी मेंबर्स पूरी तरह सभी सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग हैं। आपकी तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण अलग है। आप दीप स्तंभ हैं समाज के। आपके पद चिन्हों पर समाज चलने का प्रयास करता है और इसीलिए each and every member, their image is very important for our organization. बुद्धिस्ट धर्मगुरु दलाई लामा से एक पत्रकार ने एक बार पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे कृति बन जाएगी। अपने कृत्यों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वे आदत बन जाएगी। अपनी आदतों पे ध्यान दीजिए क्योंकि वह चरित्र बनाएगा। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए क्योंकि वही नसीब बनाएगा। और इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है, मानव धर्म है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो जब तक अपनी इमेज यदि डेवलप करनी है तो हम सेवा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, अपनी इमेज कभी नहीं बढ़ेगी। जलती हुई मोमबत्ती के बत्ती ने पिघलते हुए मोम से पूछा। एक बार जलती हुई मोमबत्ती के बत्ती ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जलती तो मैं हूं, रोता तू क्यों है। तो पिघलते हुए मोम ने कहा, जिसे दिल में बसा रखा है, जब वो बिछड़ता है तो आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। इस समाज में भी ऐसे कुछ घटक हैं जो शायद हमारे इतने भाग्यशाली नहीं है। उनके लिए अपने दिल में एक दर्द होना, एक टीस होना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसे पिघलती तो आइस कैंडी भी है। आइस कैंडी पिघल कर खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों में फर्क यह है, मोमबत्ती पिघलने से पहले प्रकाश फैलाती है, अंधियारा दूर कर देती है, और आइस कैंडी ऐसे ही पिघल जाती है। ये आइस कैंडी जो है ये उन लोगों को बताती है जो कि खाओ पियो मौज करो, जिंदगी में सिर्फ अपना सोचो। लेकिन मोमबत्ती द्योतक है उन लोगों के लिए जो अपने सिवा और भी कोई समाज के जो घटक है उनके लिए सोचना आवश्यक है। ये उसका द्योतक है। सेवा में समर्पण का भाव चाहिए। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, हजारों किलोमीटर बहते हुए अंत में जाकर एक ध्येय लेकर निकलती है, उसे सागर से मिलना है। अंत में जाकर सागर से मिल जाती है और गंगा सागर बन जाती है। लेकिन अपने ध्येय पूर्ति के लिए निकली हुई गंगा सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करती, बल्कि रास्ते में जाते समय मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, वृक्षों को, खेत खलियानों को पानी देकर पूरी तृप्ति देकर फिर आगे बढ़ती है और फिर अपना अस्तित्व मिटा देती है। यही बात हमको भी करनी है अपने जीवन में। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए न जीकर हम थोड़ा समय निकलकर औरों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, और जब करते हैं तभी अपनी इमेज बढ़ती है। फ्रेंड्स, हैव यू एवर नोटेड सनफ्लावर्स? Sunflowers, they always face to sun. But when there is no sun, there are clouds. That case, the sunflowers face each other. Decades of biological research prove that these sunflowers, they consume energy from the sunlight. Not only they consume energy, but they store their energy. And when there are clouds, there is no sun. That case, they face each other and they share energy among themselves to save each other. This is win-win condition. This we can learn from the sunflowers win-win condition. मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो।
मैं भी सुखी हूं, तुम भी सुखी हो, मैं भी सक्सेसफुल रहूं जिंदगी में, तुम भी सक्सेसफुल रहो। जब ये भावना हमारे मन में आने लगती है, सिर्फ अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब हम काम करने लगते हैं, तभी यह बात हो सकती है और अल्टीमेटली अपनी इमेज समाज में बढ़ने लगती है। समाज में जब हम निकलते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तब एक स्पीड ब्रेकर आता है हमारे लिए बीच में। ये स्पीड ब्रेकर जो है ईगो का है। हर एक में अपना एक ईगो होता है। मेरा स्टेटस, मैं क्या हूं, या मुझे पूछो, मुझे फूल नहीं दिया, मेरा अपमान हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे पूछा नहीं, मेरा नाम लिया नहीं, मेरा ईगो हर्ट हो गया। इन बातों से ऊपर उठकर हमें काम करना। संस्कृत में एक सुभाषित है जो कहता है, जरा रूपम हरति धैर्यमाशा, मृत्यु प्राणान धर्मचर्या मासूया, क्रोध क्षयमशील मनारे सेवा, रियम काम सर्वमेवाभिमान। जरा या बुढ़ापा सुंदरता का नाश करता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राण का नाश करती है, मत्सर या द्वेष धर्माचरण का नाश करता है, क्रोध विवेक का नाश करता है, असभ्य व्यक्ति से किया वाद विवाद शील का नाश करता है, वासना जागृत होने पर लज्जा का नाश होता है, और अहंकार, अहम भाव, ईगो सर्वनाश करता है। ये ईगो जो है ये सर्वनाश करने वाली चीज है। जब हम समाज में कुछ काम करने के लिए निकलते हैं तो इसको दूर रखना पड़ेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, झुकना सीखो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। किस बात की अकड़? हम समाज में जब सेवा करते हैं तो निश्चित ही ये अपने समाधान के लिए सेवा करते हैं। किसी का फायदा हो ना हो इसको लेना देना नहीं है। हमारे को एक आत्मिक समाधान मिलता है और वो समाधान ही महत्व का है। एक बार एक नया एमपीएफ का मेंबर बना था, उसे रात के 12 साढ़े 12 बजे एक फोन गया एक स्त्री का। उसने कहा, भाई साहब मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। आप काफी सेवा करते हैं समाज की। मेरे पति बाहर गांव हैं, कोई पड़ोसी भी आसपास नहीं है, मेरी डिलीवरी होने वाली है, प्लीज आके मुझे हॉस्पिटल पर पहुंचाइए। उसने सोचा चलो ठीक है, सेवा का मौका मिला है। गया, स्त्री को लिया, साथ में एक बच्चा था, उनको लिया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। डिलीवरी हुई, रात के 2-2:30 बज गए। जब वापस निकला, उस बहन ने बुला के कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदगी भर के आपके उपकार मुझ पर रहेंगे। और एक और तकलीफ देना चाहती हूँ छोटी सी। बोले क्या है? मेरे इस बच्चे को घर पे छोड़ दो। अब तो उसका दिमाग घूम गया। रात के 2:30 बजे, कल दूसरे दिन ऑडिट था, इतना टेंशन, इतना काम। बोला मेरा तो पूरा दिन खराब कर दिया इस स्त्री ने। बड़े गुस्से में बच्चे को लिया और एक सोचा कि जाके एमपीएफ से कल मैं रिजाइन कर दूंगा। बच्चे को गुस्से में बाद में पटका, गाड़ी में निकल पड़ा। रास्ते में बच्चे ने धीरे से पूछा, सर आर यू गॉड? क्या आप भगवान हैं? वो गुस्से में था, उसने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर से बच्चे ने और पूछा, सर आर यू गॉड? जवाब नहीं दिया। जब तीसरी बार बच्चे ने पूछा, सर आर यू गॉड, तो उसने कहा, जस्ट शट योर माउथ, व्हाई यू आस्किंग अगेन एंड अगेन आर यू गॉड, आर यू गॉड? बोले भगवान सर, इसलिए जब मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरी माँ एक ही बात बार बार कहती थी, बेटा अब शायद मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, अब तो कोई भगवान आएगा मुझे बचाएगा। सर आप आए, आपने मेरी माँ को बचाया, इसलिए आप ही मेरे लिए भगवान हैं। कभी कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया छोटा छोटा कार्य हमें इंसान से भगवान बना देता है। यही आत्मिक समाधान है जो लाख रुपए खर्च करने पर भी हमें नहीं मिलता, और यही इनडायरेक्टली अपनी इमेज बढ़ाता है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने मानसिक शांति के लिए करते हैं। एक बार समुद्र की बहुत बड़ी लहर आई, लाखों मछलियां आई,
पानी चला गया, मछलियां तड़प कर मरने लगी। एक छोटा बच्चा आया, दौड़ते हुए 2 मछलियां उठाई, जाकर समुद्र में फेंक दी। फिर से दौड़ता आया, 2 मछलियां उठाई, जाकर समुद्र में फेंक दी। कई बार करता रहा। एक साधु बैठा था बाजू में, बोला, बेटे लाखों मछलियां मरने जा रही है, तेरे 2-4 मछली समुद्र में फेंकने से क्या फर्क पड़ता है। उस बच्चे ने अपने हाथ में जो 2 मछलियां पकड़ रखी थी उसे दिखाकर कहा, बाबा फर्क क्या पड़ता है, इन 2 मछलियों से पूछो जिनकी जान बचने जा रही है। हम समाज में काम छोटा या बड़ा इसका मायने नहीं रखता, उसके आवश्यकता के समय उसका जो काम किया है वो मायने रखता है। आपका जो गिफ्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम है, कितनी तारीफ करूं कम है उसकी। उन प्रोफेशनल बच्चों के लिए 4 साल के लिए आप उसके शिक्षा में मदद करते हैं ताकि ग्रेजुएट होकर बाहर निकल जाए। ये उसके लिए जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। इतना महान कार्य है ये देखने वाले को शायद इतना इंपॉर्टेंस न लगे, लेकिन जिसका फायदा हुआ उससे पूछो क्या फायदा है ये कार्यक्रम लेने के लिए। या बाकी आपके जो दूसरे प्रोग्राम्स है, महेश आइडॉल है, महेश गौरव पुरस्कार है, इसमें भी समाज के कुछ ऐसे घटक होते हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उनको आप सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंटली उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। यही समाज में आपकी इमेज बढ़ाता है। और इसके लिए आसान काम नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लगभग 20 सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं। मुझे पता है इसके लिए आपको कितना पैसे जमा करने पड़ते हैं, कितने श्रम उठाने पड़ते हैं, कितना समय देना पड़ता है। और आज के जमाने में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो समय दान है, बाकी सब दान छोटे हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमारे बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये हम काम करते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि वक्त नहीं, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को तो हम मार चुके, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने के लिए वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े कि थकने का भी वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। सारे नाम तो मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। तू ही बता ऐ जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वाले को जीने के लिए ही वक्त नहीं। वक्त ही नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी समाज का कुछ भला करने के लिए हम लोग समय देते हैं, और ये समयदान ही अपनी इमेज बढ़ाता है। फिर आपके संवाद जैसे प्रोग्राम हो, कॉन्क्लेव ट्रेड इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल के हो, कुछ भी हो, सिर्फ इसके अंदर हमको थोड़ी व्याप्ति बढ़ानी है। जैसे महेश गौरव पुरस्कार आप पहले सिर्फ पुणे में देते थे, अब महाराष्ट्र लेवल पर दे रहे हैं, कल यदि भारत के लेवल पर देने लगे तो इसकी व्याप्ति बढ़ जाएगी, नेचुरली आपकी इमेज बढ़ जाएगी। एक अंतिम सजेशन आपको देना चाहूंगा। आप इतना काम करते हैं, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि बांगर ट्रस्ट की स्कीम है हेल्थ के लिए, जिसके अंदर जरूरतमंद परिवार को यदि बीमार हो या कोई ऑपरेशन हो, 15 दिन के अंदर 50,000 से 2 लाख रुपए आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। हमारे यहाँ लातूर में लगभग 20-25 लोगों का आ गया, बिल्कुल आ जाते हैं। ऐसे कुछ स्कीम्स है, या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो हमारे उन समाज के तबकों तक पहुंचा सकते हैं। इसकी आप, यू आर इंटेलेक्चुअल पीपल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, यू कैन स्टडी देन, फॉर्म अ कमिटी। वो कमिटी इसका अभ्यास करेगी और उसका फायदा समाज तक पहुंचाएगी, अपनी इमेज बढ़ जाएगी। अंत में सिर्फ 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप हमेशा इतना छोटा बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा न रहे। दूसरी बात, आप जीवन में योगी बनो या न बनो, जीवन में आप योगी बनो या न बनो, किंतु उपयोगी बनो। समाज में
पब्लिक इमेज अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।